Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine. So, today I am here to teach you a new lesson in your English literature. Unit 4, Learning from Life. Section A, Ryan's Well. Okay. So, Ryan was born in 30 May 1991, is a Canadian activist, okay, who established the Ryan's Well Foundation to bring water to people in developing countries. And he has received numerous awards for his work, and he was the youngest person ever to bestowed with the Order of Ontario. He has three brothers. Jimmy Akana was Ryan's first pen pal from Uganda. Okay, this chapter is about that how the well changed the lives of people in the area. This chapter tells us about the work of Ryan's towards the um, foundation, well foundation, water foundation. Okay, so let's start. In this chapter, you came to know that while 6 year old Ryan learned in school that many people in Africa have a very hard time getting access to clean water. So Ryan began raising money for those affected by the global water crisis by doing household activities, and which netted him some dollars over a 4 month period. So let's start the chapter. Ryan's Well. Ryan Hadjick was born in 1991 in Campbellville, Ontario, Canada. Okay, when he was 6 years old, only six. Okay, he began raising money to ensure that the children of Africa get clean, fresh water. Since then, she has worked tirelessly to raise hundreds of millions dollars for fresh water and sanitation projects in Africa. Here is an extract of his story. Extract means summary we can say of his story. In the year 2000, a little boy from Campbellville in Canada traveled to a remote village in remote means far away. It means remote means far away from village in Uganda after raising money to build a well there. Okay, जब रियान 6 years old था तो उसने ये उसके माइंड में ये थॉट आया कि लाइक उसको कुछ करना चाहिए अफ्रीका के बच्चों के लिए. वाई बिकॉज अफ्रीका के बच्चों को बेसिक नीड्स नहीं मीट हो पा रही थी. उनको जो क्लीन वाटर क्लियर वाटर होता है वो नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से वो सिक हो रहे थे, बीमार पड़ रहे थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे. तो 6 year old में उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको जैसे भी करके बच्चों को क्लीन फ्रेश वाटर के लिए कुछ करना है. नाउ at 6'7", there is nothing little about Ryan's Hadjick anymore. But even as a kid, Ryan was thinking big, thinking how he could make the change. Okay, Ryan अभी बहुत छोटा था. 6 year old बच्चा जो होता है वो बहुत छोटा होता है. रियान को पता नहीं था कि ये वो कैसे करेगा. बस ये एक थॉट था, जनरल थॉट था कि उसको करना है. कैसे वो इतना अमाउंट करेगा, इकट्ठा करेगा, कैसे वो इस चीज़ को आगे परस्यू करेगा, इस प्लान को, कुछ भी आइडिया नहीं था. बट रियान के माइंड में एक बिग थिंकिंग थी कि उसको कैसे पॉजिटिव चेंज लाना इस वर्ल्ड में. नाउ व्हेन आई वाज 6, सेज रियान, आई वाज नेव. नेव मीन्स वी कैन से इमेच्योर, नॉट नोइंग द वेज ऑफ द वर्ल्ड. जो बच्चे होते हैं जिनको वर्ल्ड के बारे में कुछ सेंस नहीं होती है, बिल्कुल मेच्योर नहीं होते हैं, सही गलत का फ़र्क नहीं होता. तो रियान कह रहा है व्हेन आई वाज 6, जब मैं 6 years old था, आई वाज नेव बट ऑल्सो स्टबन इनफ टू थिंक आई कुड मेक अ डिफरेंस. स्टबन मीन्स मैं अपने थॉट्स को लेके बहुत ज़िद्दी था कि मुझे एक पॉजिटिव चेंज करना है इस वर्ल्ड में. आई थॉट $70 वुड बाय अ वेल दैट वॉज गोइंग टू गिव एवरी वन इन द वर्ल्ड क्लीन वाटर. रियान की एज अ 6 year old बॉय की ये थिंकिंग थी कि वो इतने डॉलर में एक वेल बनाने में कामयाब होगा और वो एक वेल पूरे वर्ल्ड में क्लीन क्लियर वाटर देगा. एज अ स्मॉल किड उसकी ये थिंकिंग थी.
In class 1, Ryan's teacher told the class how kids in Africa were getting sick, missing school with no clean water in their house. जब रियान फर्स्ट क्लास में था तो उनकी टीचर ने उसको बताया था कि कैसे अफ्रीका के बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, बेसिक जो नीड्स है वो मेट नहीं हो पा रही है, वो बीमार पड़ रहे हैं और कैसे वो स्कूल भी अपना मिस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वाटर, क्लीन क्लियर वाटर, और उनके घरों में भी वो साफ पानी नहीं है जो वो पी पाएँ. Van Ryan's mother, Susan, a consultant at Ontario Ministry of Citizenship, and his father, Mark, a police officer, got home later that day. Ryan rushed to greet them. उनकी मदर, उनके फादर वर्किंग थे. जैसे ही वो घर में आए, रियान जो है वो भागता वो अपने मदर फादर को ग्रीट करने गया, मिलने गया. Mom, Dad, I need $70 for a well in Africa, he said excitedly. वो बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने मदर फादर से कहते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे एक वेल ख़रीदना है, एक कुआं ख़रीदना है अफ्रीका में बच्चों के लिए, एक अफ्रीका में कुआं ख़रीदना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है. वो अपने मदर फादर से कहता है. That's nice, Ryan, his mother replied casually as his younger brother Keegan clung to her. उसकी मदर बहुत ही, जैसे छोटे बच्चे ज़िद करते हैं तो वो बस ये बहुत कैजुअल वे में रिप्लाई कर देती कि ये तो बहुत अच्छा थॉट है, जैसे बच्चों को बताया दिया जाता है कि ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, तो वो उसकी मदर भी उसको ऐसे प्रेस कर देती कि लाइक दैट्स वेरी नाइस. ओवर डिनर रियान ट्राइड अगेन. डिनर जब रात का खाना हो रहा था तो रियान एक बार और कोशिश करता है अपने थॉट्स को अपने पेरेंट्स के सामने रखने के. रियान, $70 is lot of money, his mother said. We can't afford that. रियान अगेन अपनी बात रखता है कि मुझे अमाउंट चाहिए, मुझे पैसे चाहिए कुआं खरीदने के लिए. उसकी मदर ये रिप्लाई करती है दैट दिस अमाउंट इज़ अ लॉट ऑफ अमाउंट एंड वी कांट अफोर्ड इट. ये बहुत सारे पैसे होते हैं, ये कम पैसे नहीं होते हैं और हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर पा सकते. अफोर्ड मतलब हम लोग ये इतना बेयर नहीं कर सकते कि हम इतने सारे पैसे तुमको दे दें, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं. द नेक्स्ट इवनिंग रियान बॉट द मैटर अप अगेन. फिर अगले दिन शाम को रियान फिर से ये चीज़ दोहराता है कि लाइक मुझे पैसे चाहिए अफ्रीका में, बिकॉज 6-year-old बॉय बहुत छोटा है, वो ज़िद्दी है, उसको इस थॉट को कंप्लीट करना है कि उसको एक वेल चाहिए, कुआं खरीदना है. वो अपने पेरेंट्स से फिर शाम को कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुआं खरीदना है. यू डोंट अंडरस्टैंड, ही सेड. वो कहता है कि आप लोग समझ नहीं रहे. आप लोग कौन? वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि यू डोंट अंडरस्टैंड, ही सेड. टीयर्स फिलिंग हिज आइज. वो रोने लगता है और रो रो के अपने आंखों में आंसू ला के अपनी बात को एक्सप्लेन करता है. चिल्ड्रेन आर डाइंग बिकॉज दे डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर. वो कहता है कि बच्चे मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, साफ़ पानी नहीं है. वो रोने लगता है, रो रो के अपनी बात अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे पैसे इसलिए भी चाहिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, उनको बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही. सुसान एक्सचेंज अ ग्लांस विद अ मार्क एंड देन सेट रियान डाउन. सुशांत जो है, जो उनकी मदर है, वो अपने फादर को देखती है, मतलब अपने हस्बैंड को देखती है और रियान को नीचे बिठाती है. If you are really serious about raising $70, you can do extra work around the house, she said, assuming that he could quickly forget his project. उनकी मदर रियान को ये आइडिया देती कि अगर तुम्हें इतना अमाउंट चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें घर के काम करने पड़ेंगे. इट मीन्स कि तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी, एक नहीं, इवन जितना यू कैन डू इट, जितना तुम कर सकते हो उतना तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, तुम्हें घर के काम करने पड़ेंगे, नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तुमको पैसे मिलेंगे. और वी कांट अफोर्ड, मतलब हम लोग तो इतना पैसा अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो तुमको जॉब करके ये अर्न करना पड़ेगा ये अमाउंट. वो ये क्यों कहती है? वो कहती है कि अगर वो सोचती है कि अगर मैं इतना हार्ड वर्क बताऊंगी रियान को कि इतना ज़्यादा ट्रबल उठाना पड़ेगा, ये इतना ज़्यादा ट्रबल मेकिंग है, तो मे बी इस प्रोजेक्ट के बारे में रियान भूल जाए, क्योंकि छोटा बच्चा इतना हेडेक नहीं लेगा, इतनी थॉट्स नहीं करेगा कि कहाँ जाएगा जॉब करने. सो मे बी ये प्रोजेक्ट के बारे में भूल जाए. रियान फेस lit up. अब रियान को एक न्यू आइडिया मिल गया. क्या आइडिया था? जॉब का, पैसे कहाँ से अर्न होंगे. His first job was a vacuum the house. और उसने अपनी फर्स्ट जॉब 6 years old में ली.
घर की साफ सफाई करने के लिए। वैक्यूम मतलब क्लीन यूजिंग अ मशीन दैट सक्स ऑफ द डस्ट एंड सरफेसेस। एक मशीन रहती है वैक्यूम क्लीनिंग की जिससे घर की जो डस्ट है वो साफ होती है, मतलब डस्टिंग का काम। तो उसकी एक फर्स्ट जॉब कौन थी? वैक्यूम द हाउस, घर की साफ सफाई का काम उसकी फर्स्ट जॉब थी। ओके, while Keegan and Ryan's older brother Jordan played outside, Ryan cleaned for 2 hours. जब उसके रियान के बिग ब्रदर और यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर बाहर खेल रहे होते थे तो रियान अपनी जॉब कर रहा होता था, अपने घर की दूसरों के घर की साफ सफाई करके पैसे इकट्ठे कर रहा होता था, अपनी जॉब कर रहा होता था। He got $2. A few days later, instead of watching film with his family, he watched window and he got another. कुछ दिनों बाद उसको एक दूसरी जॉब भी मिल गई, सेकंड जॉब मिल गई घरों की खिड़कियां धुलने की, जिससे उसको कुछ पैसे और मिलने लगे। ये सब उसके पार्ट टाइम जॉब्स थे। जब पूरी फैमिली बैठ के मूवी देख रही होती थी, खेल रही होती थी, टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते थे, तो रियान अपने हार्ड वर्क कर रहा होता था अपने ड्रीम के लिए, अपने थॉट को फुलफिल करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, so hope you find the lesson useful. In next part I will continue with this chapter. Thank you and have a good